اور ہم جو خلاف ہے، ہم رجیم چینج جنہوں نے کیا ہے باجوہ کے خلاف ہے، ہم اس ادارے میں ماسٹر مائنڈ کے خلاف ہے، ہم قاضی کے خلاف ہے، ہم عدالیہ کے خلاف نہیں ہیں جو قاضی نے ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا، ہم الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں، الیکشن کمشنر کے خلاف راجا جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا۔ ہم تب حکومت اور اداروں کا احترام کریں گے جب وہ ہمارے ورکر کو ہماری پارٹی کو دیوار سے نہیں لگائیں گے۔ اس طرح پھر ہم کسی حکومت اس کے کسی ادارے کا احترام نہیں کریں گے کہ وہ تمام پارٹیوں کے لیے اسپیس دے رہے ہیں، مسلم لیگ نون کو اسپیس دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو اسپیس ہے، اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لیے پریس کلب کے آزادی رائے پہ بھی قطغن ہے، ہمارے کوئی مظاہرے کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمیں یونیورسٹی نہیں دی جاتی۔ اس طرح پھر ہم کسی حکومت کسی ادارے کو نہیں مانتے۔ ہمیں کسی ٹرمپ کی ضرورت نہیں ہے، ٹرمپ کے اپنے بہت سے مسائل اس کو ملک معیشی طور پہ تباہی سے دوچار ہے۔ ہم عدالت کے ذریعے، قانون کے ذریعے ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو فیس کریں گے، اور عدالت سے ہمیں تمام جو بوگس کیس بنائے گے خان صاحب وہاں سے انشاءاللہ سرخرو ہوگا۔ تو آپ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے کہ خان صاحب اس کی بات مانیں؟ انہوں نے ابھی اسلام آباد میں جو ہمارا 26 نومبر کو انہوں نے ہم پہ کون سا آپریشن کیا؟ ڈی چوک کون سا ہوتا؟ کوئی مقدس مقام تو نہیں تھا نا جو وہاں پہ کوئی آپ احتجاج نہیں کر سکتے ہو۔ یہ آئین آپ کو رائٹس دیتا ہے کہ آپ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہیں، پرامن احتجاج آپ کا۔ شہباز شریف ایک ڈمی حکمران ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اس کے بارے میں ابھی ہم کیا کہیں، وہ اس کیلیبر کا ہے نہیں، وہ اس منصب کے لیے ہی موزوں ترین شخص نہیں ہے۔ اور دوسری جو سی ایم پنجاب ہے وہ ٹک ٹاک پہ چلا رہی ہے۔ 14 سال کا عرصہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی خان صاحب کے 2 سال ہو گئے، یہ جو پاکستان کا قانون کے تحت ہوتا ہے 14 سال کی سزا 7 سال ہوتی ہے، اور خان صاحب کو اللہ زندگی دے۔ یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ 10 دن ہفتہ 15 دن بھی یہ وہ جیل برداشت نہیں کر سکتے۔ خان صاحب پہ کتنے الزامات ہیں، کوکنگ خان ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ نشہ کرتا ہے، آئس کوکنگ وغیرہ XYZ آپ نے دیکھا، وہ نہ بیمار ہوئے نہ فرار ہوئے نہ انہوں نے ڈیل کی۔ خان صاحب ان چیزوں کے لیے 14 سال تو کیا اللہ زندگی دے، اگر وہ زندہ رہے وہ 70 سال بھی برداشت۔ سب سے پہلے تو میں چنار نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ جو 190 ملین فنڈ ریفرنس کا آپ نے کہا کہ خان صاحب کو 14 سال سزا کیوں دی گئی، اس سے پہلے بھی خان صاحب پہ 200 سے ابو FIRs ہیں، مختلف کیسوں میں خان صاحب کو سزائیں دی گئی۔ یہ مینج فیصلے ہوتے ہیں، اور جس جج نے خان صاحب کی جو فیصلہ سنا ہے اس کو اختیار ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے نائل ہیں۔ باقی جہاں تک 190 ملین فنڈ ریفرنس کا تعلق ہے، وہ پیسے اسٹیٹ بینک میں، اسے خان صاحب کو کوئی بھی منافع نہیں ہوا ہے۔ تو اس فیصلے کے خلاف ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اور اس کی ہمیں پتہ تھا پہلے سے۔ دراصل یہ جو سزا سنائی گئی ہے 14 سال، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور پارٹی پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو انارو دیں۔ ہم کسی صورت بھی انارو نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن اس سے مشکلات کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی، خان صاحب کے اندر وہ قوت ہے کہ وہ ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوری نظام پہ یقین رکھتے ہیں، اور آئین کے دائرے میں ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن آپ کو یہ انقلاب ہی تو ہے نا۔ 8 فروری کو آپ نے نہیں دیکھا، تمام PDM ایک طرف اور پاکستان تحریک انصاف جن سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا ہے، اس کے باوجود ووٹر نے کس طرح ہمارے کینڈیڈیٹس کا نشان دیکھا۔ دیکھو انقلاب یہ نہیں ہوتا کہ ہم خونی انقلاب کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوری انقلاب کی بات کرتے ہیں، ہم ووٹ کے پرچی پہ یقین کرتے ہیں۔ عوام کی طاقت سے انقلاب آ چکا ہے، اور انشاءاللہ آنے والا الیکشن بہت جلد ہوں گے، آپ دیکھ لیں گے۔ اور یہ 2024 اور 25 کا سال آپ کو جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے کس طرح انقلاب لاتے ہیں۔ یہ جو ہے PDM اور اس کے جو اتحادی ہے، ان کی ضمانتیں پہلے بھی ضبط ہو چکی ہیں، ابھی ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ اسٹیبلشمنٹ ووٹ پہ یقین کرے گا تو ان کا نپکا ان کا جو بزنس ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ آپ نے دیکھا جو 12 اکتوبر کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ طاہرہ کیس سازش جو تھا، اس میں انہوں نے نواز شریف کو اسی طرح سزا دی، تاحیات نائل قرار دیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں آج ان پہ نیب کے کیسز ہے، اسٹیبلشمنٹ آج ان کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہے، وہ اپنا کام چلا رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے۔ اور تو آنے والا دور جب پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول، ہر بندے کا ہر چیز کا اپنا اپنا رول، ہر ادارے کا اپنا رول کا تعین ہو جائے گا۔ دراصل 14 سال کا عرصہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی خان صاحب کے 2 سال ہو گئے، یہ جو پاکستان کا قانون کے تحت ہوتا ہے 14 سال کی سزا 7 سال ہوتی ہے، اور خان صاحب کو اللہ زندگی دے۔ یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ 10 دن ہفتہ 15 دن بھی یہ وہ جیل برداشت نہیں کر سکتے۔ خان صاحب پہ کتنے الزامات ہیں، کوکنگ خان ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ نشہ کرتا ہے، آئس کوکنگ وغیرہ XYZ آپ نے دیکھا، وہ نہ بیمار ہوئے نہ فرار ہوئے نہ انہوں نے ڈیل کی۔ خان صاحب ان چیزوں کے لیے 14 سال تو کیا اللہ زندگی دے، اگر وہ زندہ رہے وہ 70 سال بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے کہ خان صاحب اس کی بات مانیں؟ ریاستی ادارے جو ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ ریاستی اداروں کا اپنا جب وہ حلف لیتے ہیں، وہ اپنے ادارے کے ساتھ وفاداری کا حلف لیتے ہیں، تو ان کا اپنے جو ڈومین ہے اس میں کام کریں۔
रही जहाँ तक आप अभी रियासती इदारों में अदलिया भी है, रियासती इदारों में कानून नाफिज करने वाले भी है, रियासती इदारों में जो है आपका इलेक्शन कमीशन भी है, तो ये सब जो है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे जो भी इदारे हो वो कौमी असम्बली और सेनेट के मातहत है। कौमी असम्बली सेनेट से बालातर कोई भी नहीं है, ये सब इनको जवाब दे है। वो और हम कोई डील नहीं करेंगे। ये अपर हमें हुए कि आप लोग 2 साल के लिए खान साहब खामोशी इख्तियार करें और खान साहब जो है बनिगाला जाना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा जाना चाहते हैं, वो जो है सोशल मीडिया पे ये जो है जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए, तो इन चीज़ों को हमने मुस्तरद कर दिया। हम कोई डील पे नहीं यकीन रखते, ना हम डील करेंगे, चाहे वो जो भी इदारा हो। बात सुने, खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे अमन है, अब भी बलूचिस्तान से ज़्यादा अमन वहाँ पे। और अमीन गंडापुर चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसकी भी मजबूरियां हैं। वहाँ पे आपको पता है कि मजहबी जो तहरीकें हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, तो वो वहाँ पे उनका असर रसूख है। तो स्टेप बाय स्टेप जब मरकज़ में आपकी गवर्नमेंट ना हो, वफाक में आप सूबे में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 तिहाई अक्सरियत के बावजूद उन्हें गवर्नमेंट नहीं दी गई। बलूचिस्तान में हमसे अपना आपके सामने है, हमारे जो कौमी असम्बली की नशस्तें हम जीते, सालार खान काकड़ जीता, ये मेरा सीट पे मेरा PTI और BNP का मुकाबला था, वो PP को दे दिया गया। हमारी सूबा असम्बली की नशस्तें सरदार बाबर मुसाखिल जीता। इस तरह पूरे पाकिस्तान से तो अमीन गंडापुर जो है वो सूबा है, और वफाक जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेगा, उनको फंडिंग नहीं करेगा, ये सिर्फ सूबे का नहीं वफाक का भी ये काम बनता है। और बलूचिस्तान से तो अभी भी वहाँ पर हालात बहुत बेहतर है, अमन अमान का। और फिर KPK के साथ बॉर्डर लगते हैं, जिस तरह हमारे साथ 2 बॉर्डर लग रहे हैं, ईरान अफगानिस्तान। KPK के साथ भी अफगानिस्तान का बॉर्डर लग रहा है। और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, अब उनका वहाँ पे बड़ा असर रसूख है, मजहबी रुझानात बड़े पाए जाते। तो इंशाअल्लाह रहमान हम तहरीक तालिबान और अफगानिस्तान के लिए अभी अली अमीन गंडापुर साहब ने एक वफद तश्कील दे रहे हैं, जो अफगानिस्तान जाएंगे, उनसे बात करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में अमन हो। यहाँ पे जो बलूच कौमी तहरीकें हैं, बलूच यकजहती कौंसिल, हम तो चाहते हैं कि हमने तो बारहा ही कहा है कि जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं और जो ये आप इदारों की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, हम तो चाहते हैं कि जो बड़े हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, ये इनका फ़र्ज़ बनता है कि सियासी जमातों का मुश्तरका गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कॉल करे। इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तिकाम ना होने के सबब मैशती इस्तिकाम भी नहीं आ सकता है। तो ये डेलाक का ज़रूरत है, एक नेशनल सतह पे, कौमी सतह पे डेलाक होनी चाहिए, और पाकिस्तान को इस बहरानों से मिल के सबको निकालना चाहिए। एक नहीं है वो जो कहते हैं, जिस तरह मिसाक जमहूरियत हुआ था पीपल्स पार्टी और नून दिगर पार्टियों की, एक नहीं मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत इस मुल्क को आने वाली इस नस्ल के लिए। देखो, रियासत होगा तो सियासत भी होगा, हमारे इदारे होंगे, हमें अपने इदारों पे फ़ख्र है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं रही। देखो, हम कभी भी अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है, हम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं हैं। यानी रियासत और इदारों का मकसद ये है, रियासत मानी हुकूमत। हम तब हुकूमत और इदारों का एहतराम करेंगे जब वो हमारे वर्कर को हमारी पार्टी को जवाब से नहीं लगाएंगे। इस तरह फिर हम किसी हुकूमत उसके किसी इदारे का एहतराम नहीं करेंगे कि वो तमाम पार्टियों के लिए स्पेस दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को स्पेस दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को स्पेस है, और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्रेस क्लब के आज़ादी राय पे भी कतगनी, हमारे कोई मुजाहरे की इजाज़त नहीं देता है, हमें यूनिवर्सिटी नहीं दी जाती। इस तरह फिर हम किसी हुकूमत किसी इदारे को नहीं मानते जो हमें हमारी पार्टी को, जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1973 के आइन पे यकीन रखते हैं। तो इस तरह जब मेरे लिए यहाँ पे DC ऑफिस मुझे यूनिवर्सिटी नहीं देगा, और पुलिस जब मुझे प्रेस क्लब के सामने से एहतजाज पे गिरफ्तार करेंगे, FIR होंगे, फिर किस तरह एहतराम होता है? हमने हमेशा कहा कि ये जो शोहदा है पुलिस के, FC के, फौज के, ये हमारे माथे का जुमर है, और हम जो खिलाफ है, हम रजीम चेंज जिन्होंने किया, बाजवा के खिलाफ है, हम उस इदारे में मास्टरमाइंड के खिलाफ है, हम काजी के खिलाफ है, हम अदालिया के खिलाफ नहीं है। जो काजी ने हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना, हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है, राजा जिन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला। मरकज़ी वज़ीर दाखिला, वो मरकज़ ने ऑपरेशन किया था, उसके बाद जरगे को वज़ीर आला KPK अमीन गंडापुर साहब ने इजाज़त भी दी, उनको फैसिलिटेट भी किया गया, और वो ख़ुद उस जरगे में भी गए। हम पुरअमन लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रहे हैं, हम किसी के लिए जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करें। वो पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़, वो पश्तून तहरीक तहफ़्फ़ुज़ मोमिन PTM हो या कोई भी हो। देखो, हमारा जब गवर्नमेंट था, वफाक में खान साहब वज़ीर आज़म थे, मौलाना अब्दुल रहमान साहब, ये जो जमातें थी PDM की, अपोजिशन, उन्होंने कॉल की, मार्च किया, हमने इस्लामाबाद में उनको जगह भी दिया, फैसिलिटेट भी किया, पानी का, खाने का तमाम बंदोबस्त किया। ये अब हमारा भी राइट्स बनता है कि हमें भी इसी तरह की आज़ादी हो। इन्होंने अभी इस्लामाबाद में जो हमारा 24 नवंबर को उन्होंने हम पे कौन सा ऑपरेशन के डी चौक कौन सा होता, कोई मुकद्दस मकाम तो नहीं था ना, जो वहाँ पे कोई आप एहतिजाज नहीं कर सकते हो। ये आइन आपको राइट्स देता है कि आप आइन के दायरे के अंदर रहते हैं, पुरअमन एहतिजाज आप करें। शहबाज शरीफ एक डमी हुक्मरान है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उसके बारे में अभी हम क्या कहें, वो इस कैलिबर का है नहीं, वो इस मनसब के लिए ही मौजूद तरीन शख्स नहीं है। और दूसरी जो CM पंजाब है, वो टिक टाक पे चला रही गवर्नमेंट, बस। तो उनसे ना हम मुज़ाकरात कर सकते, ना उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो खान साहब को रिहा कर, या उनके साथ हमने उनके सामने 2 ही तो हमारे मुतालिबे, 2 मुतालिबे हमने उनसे किए।
9 मई और 24 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो आसिरानी कीदी उनको रिहा की जाए। ये 2 मुतालिबात हैं, मैंडेट हम खुद ले लेंगे। ये 2 मुतालिबात उसके बस में नहीं है। बाकी उससे इस तरह के वज़ीर-ए-आज़म से हमें कोई, और ये वज़ीर-ए-आज़म तो है नहीं, ये तो उनका एक सेलेक्टेड है, इसको हम नहीं मानते। हमारे लिए सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है। हम यकीन रखते हैं या का नाबुदु या का नस्तईन, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद नुसरत मांगते हैं। हमें किसी ट्रंप की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप के अपने बहुत से मसाइल, उसको मुल्क खुद मैशी तौर पर तबाही से दो चार है। हम अदालत के ज़रिए, कानून के ज़रिए हम इसका मुकाबला करेंगे, इसको फेस करेंगे, और अदालत से हमें तमाम जो बोगस केस बनाए गए खान साहब वहाँ से इंशाल्लाह सुरखरू हो। मैं भी हो सकता है जिस तरह ट्रंप के साथ नाजायज़ हुआ, उस पर एस्टेब्लिशमेंट ने केसें बनाए, इस तरह इमरान खान साहब पे बनाए। आज ट्रंप सदर अमेरिका है, कल उसने तमाम जो जिनके कारकुन गिरफ्तार थे उन सब के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। इसी तरह 8 फरवरी को हमें मैंडेट दिया, हम पे भी इन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो है 9 मई को जो है तनसीबात पे हमला किया था, उसके बावजूद आवाम ने आपने वोट दिया। आने वाले इलेक्शन में फिर हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे और हम बाहर आएंगे। जो कारकुनान उस वक्त तक रिलीज़ नहीं हुए तो इंशाल्लाह रहमान हम अपने ताकत से उसको रिलीज़ करवाएंगे। ये हुकूमत 4 साल पूरा करना, शहबाज शरीफ अपना वो जो टर्नओवर रेट पूरा नहीं कर सकता, वो अपना मियाद पूरा नहीं कर सकता। मारंग बलोच का तहरीक जो है हम उसके मुखालिफ नहीं है। मारंग बलोच हो या मंजूर पश्तून हो, उनका तहरीक अपने हकूक़ के लिए, अपने कौम के हकूक़ के लिए, वो पश्तून कौम के हकूक़ की बात कर रही है, बलोच कौम के हकूक़ की बात कर रही है, वो मिसिंग पर्सन की बात कर रही है। मंजूर पश्तून भी कहता है, जो उस इलाके के सूबे के मादनियात की बात कर रही है, साइल और साइल की बात कर रही है, वो कहते हैं कि जो मिसिंग पर्सन है अगर आपके पास है तो पेश करे, उसका जो जुर्म है अदालत को बता दे, वो सज़ा कर दे। अगर वो अल्लाह को प्यारे हो गए तो आप उसके हमें लाशें दे दे, ताकि उनके माएँ बहनें, उनकी बेवाएँ जो बेटी है उनको तसली हो जाए। हम इस तरह तहरीक आज तक उन दोनों का तहरीक जो है पूरा माने, उन्होंने इस तरह मसला जद्दोजहद नहीं की है, तो इस तरह तहरीकों की हम हिमायत करते हैं। बॉर्डर के हवाले से चमन दूसरा साल होने को है, उनके साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की जा रही है। वो उनका रोज़गार, ये देखो बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% रकबे के लिहाज से और मैशी तौर पर यहाँ पे कोई सनत नहीं है। यही बॉर्डर ट्रेड होता है, यही जो हमारी या ईरान बॉर्डर से तेल डीजल आते हैं, वहाँ से जो कोई ऐशा कोई एक जिसको नक कहते हैं, वो वहाँ पे जो मजदूरकार है जिनको लकड़ी कहते हैं, वो लकड़ी मकसद ये होता है जो छोटे बिजनेस करते हैं, गरीब किसी का वो सामान लाते हैं, उन पर इन्होंने पाबंदी लगाई है और इसको स्मगलिंग नहीं कहते। स्मगलिंग अब भी हो रही है, IFI लेवल पे हो रही है, उनका रोकथाम नहीं है। ये इसको फ़ौरन से पेशतर, ये देखो अफगानिस्तान और चमन और वहाँ पे बोलदक, ये दोनों कबाइल रहते हैं, यहाँ उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, उनको सहूलत दी जाए, तस्करा पे छोड़ा जाए, वो टोकन सिस्टम उनको दिया जाए, उनको रोज़गार, वो इस हद तक पहुँचे हुए कि वो बगावत पे मजबूर है, या तो ख़ुदकुशी करेंगे या बगावत करेंगे। तो ये जो मुक़्तदर को होते हैं उनको सोच विचार करनी चाहिए, इनके लिए इन गरीबों की बदवाई नहीं लेनी चाहिए। पहले से माशी तौर पे तबाह, इनके लिए इनको रिलैक्स करें, हम इनके भरपूर हिमायत करते हैं। जिनके साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई तो ये तमाम चीज़ें ये हमारे ज़हनों में इंशाल्लाह इसका हल हम निकालेंगे।